بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد اقیمو صلاۃ صلاۃ کا جس کو نماز کہتے ہیں لفظ قرآن میں ہے، تفصیل قرآن میں نہیں۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں ہے، تفصیل قرآن میں نہیں۔ روزہ قرآن میں حکم ہے، تفصیل قرآن میں کہیں نہیں۔ حج قرآن میں ہے، طواف کے 7 چکر قرآن میں نہیں۔ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ کئی بار قرآن میں آئی، مگر رکعتیں قرآن میں نہیں۔ واجبات نماز کتنی ہے قرآن میں نہیں۔ مستحبات کیا ہے، شکیات نماز، سہویات نماز، نماز رد مظالم، نماز مغفرت والدین وغیرہ، یہ تفصیل قرآن میں نہیں۔ 19 بار قرآن میں زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، مگر یہ قرآن میں نہیں کہ اونٹ پہ کتنی زکوٰۃ، گائے پہ کتنی زکوٰۃ، بکری پہ کتنی زکوٰۃ، سونے پہ کتنی زکوٰۃ، چاندی پہ کتنی زکوٰۃ، جو پہ کتنی زکوٰۃ، گندم پہ کتنی زکوٰۃ، یہ قرآن میں نہیں۔ اسی طرح حج قرآن میں ہے، طواف کے 7 چکر قرآن میں نہیں۔ روزہ کا حکم قرآن میں ہے، یہ قرآن میں نہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو مکروہ کرتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو حرام کرتی ہیں، یہ تفصیل قرآن میں نہیں۔ یہ ساری تفصیل، ساری چیزوں کی تفصیل ہمارے نبی سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ حضور نے فرمایا کہ ظہر کی اتنی رکعتیں، عصر کی اتنی رکعتیں، مغرب کی اتنی رکعتیں، عشاء کی اتنی رکعتیں، فجر کی اتنی رکعتیں، یہ واجبات ہے، یہ مستحبات ہے، یہ رد مظالم کی نماز ہے، یہ مغفرت والدین کی نماز اس طریقے سے ہے، یہ سہویات نماز ہے۔ یہ ساری تفصیل نماز کی، صلاۃ کی حضور نے فرمائی۔ اور زکوٰۃ جس کا حکم تو قرآن میں 19 جگہ پہ زکوٰۃ کا آیا ہے، مگر تفسیر حضور نے فرمائی۔ اونٹ پہ اتنی زکوٰۃ ہے، گائے پہ اتنی زکوٰۃ ہے، بکریوں پہ اتنی زکوٰۃ ہے، سونا پہ اتنی زکوٰۃ، چاندی پہ اتنی زکوٰۃ، جو پہ اتنی زکوٰۃ اور گندم پہ اتنی زکوٰۃ، یہ ساری تفصیل حضور نے فرمائی۔ روزہ قرآن میں ہے، مگر یہ پتہ نہیں مکروہات روزہ کیا ہے، مبطلات روزہ کیا ہے، اور کتنے روزے واجب ہیں۔ دیکھیں، ایک رمضان کا روزہ واجب نہیں، 8 قسم کے روزے جو ہیں واجب ہوتے ہیں، وہ حضور نے بتایا۔ 6 شرطیں روزے رکھنے کے حضور نے بتایا۔ 9 چیزیں ہیں جو روزے کو مکروہ کرتی ہیں، یہ تفصیل حضور نے فرمائی۔ 10 چیزیں ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یہ تفصیل حضور نے فرمائی۔ 10 چیزیں ہیں جس سے روزہ حرام ہے، وہ تفصیل حضور نے فرمائی۔ حج قرآن میں ہے، اس کی تفصیل حضور نے فرمائی۔ تو ساری چیزیں حضور نے تفصیل فرمائی اور آپ نے مان لیا اور وہ لے لی۔ نماز تم کو حضور نے دی، تم نے وہ لے لی۔ روزہ تم کو حضور نے دیا، تم نے لیا۔ حج تم کو حضور نے دیا، تم نے لیا۔ زکوٰۃ تم کو حضور نے دی، تم نے لی، اور سارا دن ان کی جو ہے تبلیغ کرتے رہتے ہو، نماز 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 نماز۔ حضور نے دی ہے نا تمہیں نماز، روزے کی تبلیغ کرتے رہتے ہو، حضور نے دی ہے نا تفصیل تمہیں، قرآن میں تو کہیں نہیں۔ اگر حضور نے بتاتا تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کون چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، مکروہ کرتی ہیں یا حرام کرتی ہیں، کتنے روزے واجب ہیں، کیا روزے رکھنے کے شرط ہیں، یہ سارا حضور نے فرمایا۔ جب حضور نے تمہیں نماز دی، تم نے لی۔ حضور نے تمہیں روزہ دیا، تم نے لیا۔ حضور نے تمہیں زکوٰۃ دی، تم نے لی۔ حضور نے تمہیں حج دیا، تم نے لیا۔ دشمنی ایک علی سے ہے، علی بھی تو تمہیں دے رہا ہے نا، وہ کیوں نہیں لیتے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج کل ممبروں پہ جتنی نماز، روزے، حج کی تعریف ہوتی ہے، اتنی علی کی کیوں نہیں ہوتی؟ سرکاری ممبروں پہ، خانگی ممبروں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ حضور نے تو علی بھی دیا ہے نا، اس کی بھی تو اتنی تعریف کرو نا، کیوں نہیں کرتے جتنی ان چیزوں کی کرتے ہو؟ ہمارا ایک نبی ہے، دیکھیں، سارے مسلمانوں کا ایک ہی نبی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر ایمان کتنے نبیوں پہ ہے؟ 1,24,000 انبیاء۔ سارے مسلمانوں کو میرا چیلنج ہے، عالم، مفتی، مجتہد،
जाकिर नाइक जैसा जो लोगों से बेअत ले रहा है, उनको भी मेरा चैलेंज है। 1,24,000 अंबिया के नाम बताए, मैं भी इसके हाथ पे बेअत करता हूँ, कोई नहीं बता सकता। चलो 50,000 अंबिया के नाम बताए, कोई बाबा नहीं बता सकता शरीयत का दावेदार। कोई 20,000 अंबिया के नाम बताए, कोई भी नहीं बता सकता। 10,000 अंबिया के नाम बताए, कोई भी नहीं बता सकता। कोई 5,000 अंबिया के नाम बताए, कोई शरीयत का दावेदार, कोई भी नहीं बता सकता। चलो मैं आसान करता हूँ, 2,000 अंबिया के कोई नाम बताए, कोई भी नहीं बता सकता। 1,000 अंबिया के नाम बताए, 800 अंबिया के नाम बताए, 700 अंबिया के नाम बताए, कोई भी नहीं बता सकता। 500 अंबिया के नाम बताए, कोई भी नहीं बता सकता। 1,24,000 अंबिया पे ईमान है, 500 अंबिया के नाम तक याद नहीं। ईमान कितनों पे? 1,24,000 अंबिया पे। आपके पास कोई सबूत नहीं, ना उनकी किताब आपके पास, ना उनकी कॉल आपके पास, ना उनकी लाइफ हिस्ट्री आपके पास, ना उनकी बायोग्राफी आपके पास, ना उनकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास, ना उनके कब्रों का पता, ना उनके शहरों का पता, ना उनके शजरों का पता, ना उनका कॉल, ना उनका कोई सहीफा, कोई सबूत आपके पास नहीं। फिर क्यों ईमान रखते हो 1,24,000 अंबिया पर? जवाब यही मिलता है कि सादक नबी ने बताया। फिर मैं कहता हूँ कि हया करो, शर्म करो। जब तुमको सादिक नबी ने बताया, हुजूर ने बताया कि 1,24,000 पैगंबर आए, तो बग़ैर सबूत के, बग़ैर दलील के तुमने मान लिया। और गदीर के मैदान में अली का हाथ बुलंद करके दिखा भी रहा है, बता भी रहा है, फिर क्यों नहीं मानते? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अली से दुश्मनी क्या है? हमको धमकियाँ मिलती हैं राग नबरों पे और नामालूम नबरों पे, ये इस तरह से अली का जिक्र छोड़ दो, हम तुम्हें बर्बाद करेंगे, मारेंगे। क्या मारोगे मुझे? पहले जो मरा हुआ है उसको क्या मारोगे? मैं तो पहले ही मोहब्बत अली मर चुका हूँ। और याद रखना, जब तक मेरा मौला का हुक्म नहीं आता, कोई भी मुझे नहीं मार सकता। मौला उलल अमर है, जो रूह कब्ज़ करने वाला है, अमर का ग़ुलाम है। जब तक मेरा मौला इज़राइल को हुक्म नहीं देगा, कोई भी मुझे नहीं मार सकता। और मुझे इस बात का कोई भी डर नहीं है, जब मेरा मौला चाहेगा मैं तब मरूंगा। और ये भी मेरे पास कमेंट में और लोग कहते हैं कि अल्लाह की बात क्यों नहीं करता है तू, रसूल की बात क्यों नहीं करता है तू, हर वीडियो में हर जगह तू अली अली की बात करता है। भाई मैं गया था अल्लाह के पास, पहले अल्लाह अल्लाह करने गया था, कितनी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करता रहा। अल्लाह ने कहा जा रसूल की अताअत कर, बस मैं तुमसे राज़ी हो गया, मेरी मोहब्बत का सबूत मिल गया। मैं रसूल के पास फिर गया, अल्लाह ने भेजा रसूल के पास। जब रसूल के पास आया तो रसूल ने कहा जा अली का जिक्र कर। मैं कुरान से सबूत देता हूँ, दलील के बगैर तो मैं बोलता नहीं। बोलना तो अपनी जगह, मैं सोचता भी नहीं हूँ बगैर दलील के, जब तक मेरे पास दलील न हो। कुरान पाक पढ़िए, सूरह इमरान की आयत नंबर 31 में इरशाद होता है, कुल इन कुन तुम तो हिब्बुन अल्लाह, ए हबीब कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत बे उन्नी, मेरी अतबा करो। अल्लाह की मोहब्बत का सबूत हुजूर की अतबा होगा क्या? यो बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। व यगफिर लकुम जुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह भी माफ़ करेगा। अब बात समझ में आई? अल्लाह कहता है मेरी मोहब्बत का सबूत देने के लिए मेरे हबीब की अतायत करो। मैं तमाम मुसलमानों से पूछता हूँ, मन कुन तो मौला, क्या अतायत रसूल नहीं? ज़िक्र अली इबादा अतायत रसूल नहीं? ज़यनु मजालिसकुम ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब की अतायत रसूल नहीं? अल्लाह ने भेजा रसूल के पास, हम आए रसूल के पास, रसूल कहता है जाओ अली का जिक्र करो, अपने मजलसों में अली का जिक्र करो, तनाई में अली का जिक्र करो, अली की फजीलत बयान करो, अली का नाम लो। हम तो मजबूर बन गए ना। अली के जिक्र से, अली की मोहब्बत से रसूल की अताअत होती है, और रसूल की अताअत से अल्लाह की मोहब्बत का सबूत होता है। मैं पूछता हूँ तुम्हें दुश्मनी क्या है अली से? और तुम्हारे इस सख्त मिजाज और हासिद मिजाज को देख करके अल्लाह ने सूरह नहल की आयत 83 में इरशाद फरमाया, यारफून नेमतल्लाह सुम युनकिरूनहा, तुम लोगों को क्या हो गया है, तुम अल्लाह की नेमत को पहचान कर फिर भी उसका इनकार करते हो। अब तुम तो कहते हो कि पानी नेमत है, रोटी नेमत है, हवा नेमत है, बेटा नेमत है, नींद नेमत है। मुझे वो इंसान दिखाओ जो पानी का इनकार करता हो। अल्लाह कहता है मेरी नेमत को पहचान कर उसका इनकार क्यों करते हो? है कोई इंसान ऐसा जो पानी का इनकार करे? अगर पानी नेमत है, बच्चा भी इनकार नहीं कर सकता। दिन में 20 बार तितली ज़बान में अपनी माँ से मांगता है पानी पानी पानी, बच्चा भी पानी का इनकार नहीं करता। ऐसा कोई इंसान दिखाओ जो हवा का इनकार करे। तुम कहते हो ना हवा नेमत है।
एक दिन हवा नहीं लगती है तो तुम इस सोलर सिस्टम को इस्तेमाल करते हो, पंखा चलाते हो ताकि हम मर न जाएं। कोई भी इनकार हवा का नहीं करता। तुम कहते हो नींद नेमत है, फिर कौन है वो ऐसा इंसान जो नींद का इनकार करे? कोई नहीं करता। एक रात नींद नहीं आती है तो दूसरी रात गोलियां खाते हो ताकि नींद आए। ये कौन सी नेमत है जिसका जिक्र अल्लाह कुरान की सूरह नहल में कर रहा है कि मेरी नेमत को पहचान कर फिर भी इनकार करते हो? जाओ गदीर में और इस आयत को याद करो, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज नेमत कामिल हो गई। भाई क्यों, पहले क्यों नहीं हुई? मुझे सबूत दिखाओ किसी भी तारीख में, कुरान की किस आयत में, किस हदीस में कि आदम के आने के बाद नेमत कामिल हो नहीं हुई है। आदम आया, नेमत कामिल नहीं हुई। शीस आया, नेमत कामिल नहीं हुई। इदरीस आया, नेमत कामिल नहीं हुई। नूह आया, नेमत कामिल नहीं हुई। इब्राहिम आया, नेमत कामिल नहीं हुई। इस्माइल आया, नेमत कामिल नहीं हुई। इसहाक आया, नेमत कामिल नहीं हुई। याकूब आया, नेमत कामिल नहीं हुई। यूसुफ आया, नेमत कामिल नहीं हुई। यहया आया, नेमत कामिल नहीं हुई। मूसा आया, नेमत कामिल नहीं हुई। ईसा आया, नेमत कामिल नहीं हुई। हमारा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा आया, नेमत कामिल नहीं हुई। कुरान आया, नेमत कामिल नहीं हुई। जब गदीर के मैदान में हुजूर ने अली का हाथ बुलंद करके फरमाया मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली मौला, अल्लाह कहता है कि अब नेमत कामिल हो गई। तो कामिल नेमत मेरा मौला अली है। इसके बारे में इरशाद हो रहा है, क्या हो गया है तुम लोगों को, अल्लाह की नेमत को पहचान कर फिर भी उसका इनकार करते हो? नमाज 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 पढ़ते रहो। नमाज नहीं है तुम्हारी नमाज की ज़रूरत, अल्लाह को क्या करेगा तुम्हारी नमाज? अल्लाह क्या अल्लाह की बुलंदी बढ़ जाएगी? अल्लाह की अजमत तुम्हारी नमाज से बढ़ जाएगी? नहीं, ये तुम्हारा फ़ायदा है इस नमाज में। दिन रात में 5 वक्त अपने दरवाजे पे तुम्हें अली की खातर भिखारी बना के अल्लाह खड़ा करता है कि मांगो अली, मांगो अली, मांगो अली। ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम क्या है जो तुम तमन्ना करते हो अपनी नमाज में? सिरात मुस्तकीम दे दे, सिरात मुस्तकीम दे दे। इसकी तमन्ना की खातर तुम्हें अल्लाह ने अपने दरवाजे पे भिखारी बना के खड़ा है अली की खातर, ताकि तुम इसको मांगो। क्योंकि बगैर मांगे अली ऐसी चीज़ है रसूल को भी नहीं मिलती। अल्लाह से मांगता है या अल्लाह मुझे सुल्तान नसीर अता फरमा, फिर मिलता है। तुम किस बाग की मूली हो जो बगैर मांगे तुम्हें अली मिलेगा? अगर तुम्हारी नीयत नेक होगी तो रोज़ाना 5 बार मांगने से, 5 वक्त की नमाजों में मांगने से अली तुम मिल जाएगा। अल्लाह नीयत देखेगा, नीयत नेक नहीं। सारी ज़िंदगी कहते रहो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, नहीं मिलेगा तुम्हें अली। ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम मेरा मौला अली है, इसके इश्क को कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। 9 बार अबू बकर ने पूछा था या रसूला ये सिरात मुस्तकीम क्या है? हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। 10वीं बार हुजूर ने खुद फरमाया अब उठ के सवाल करो, क्योंकि मस्जिद में अली आ गए थे। जब अली मौला आए हुजूर सारे का सारा अली की जानिब रुक करके फरमाया हाज़ा सिरात मुस्तकीम, ये है सिरात मुस्तकीम। अब पता चला ये सवाल करते हो अपनी नमाजों में, एक तरफ अली की तमन्ना करते हो या अल्लाह अली दे दे, और दूसरी तरफ कहते हो अली नमाज में आया तो नमाज बातिल है। अजीब किस्म के लोग हो। जब हुजूर नमाज पढ़ रहा है, 8 साल का बच्चा हुसैन हुजूर के पुश्त पे सवार हो गया, हुजूर सजदे में है। किसी को ताकत नहीं कि हुसैन को हुजूर के पुश्त से हटाए। न जिब्राइल हटाता है, न रसूल हटाता है, न अल्लाह हटाता है। जब सरदारुल अंबिया की नमाज से कोई हुसैन को नहीं निकाल सकता है तो तुम कौन होते हो अपनी नमाजों से, हमारी नमाजों से अली को निकालने वाले? अली के बगैर क्या इबादत है? फिर ये इबादत नहीं आदत बन जाएगी। इबादत बा निकालो क्या होगा? आदत बन जाएगी। बा कौन है? बा का नुक्ता अली है। अली को नमाज से निकालो तो फिर ये इबादत नहीं, ये आदत बन जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त अली से दुश्मनी छोड़ो। अली का इसमें फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा तुम्हारा अपना है। दुआओं में याद रखिएगा। या अली मदद।